بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام فیلوز کو میرا راجودین کا سلام۔ ڈیئر فیلوز، میں اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب فیلوز سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ آج ڈان کا ایڈیٹوریل ہے چمن کلیش۔ اس کی وکیبلری پہلے دیکھتے ہیں۔ لیجیٹیمیسی، قانونی حیثیت، ناؤن، کنفارمیٹی ٹو دا لا اور ٹو رولز۔ فرنٹیئر، سرحد، noun. A line or border separating two countries. Tragic, dardnak, adjective, causing or characterized by extreme distress or sorrow. Incapable of, adjective, naahil, unable to do or achieve something. Resort, noun, raju, turn to or adopt a course of action, especially an extreme or undesirable one, so as to resolve a difficult situation. Unprovoked, adjective, bila ishtihar, carried out, occurring or acting without direct provocation. Skirmish, noun, ladai, jhadap, an episode of irregular or unpremeditated fighting, especially between small or outlying parts of armies or fleets. Call upon, make use of someone or something as a source of help. Episode, noun, ضمنی واقعہ، قسط، flare up، کسی چیز کا اچانک سے ہونا، noun, a sudden outburst of something, especially violence or hostility. Rein in, verb, لگام سے قابو کر. In this context, اس تناظر میں. Sneak into, to enter some place in a quiet, sneaky, inconspicuous or furtive manner so as not to be detected. Revanchism, intakami policy, noun, a policy of seeking to retaliate, especially to recover lost territory. Illusion, wahm, noun, a false idea or belief. Fantasy, noun, خیال. Abandon, چھوڑ دینا, adjective. Regressive, پیچھے ہٹنا, رد عمل, adjective. Returning to a former or less developed state characterized by regression. Implode, verb, پھٹنا, end or fail suddenly or dramatically. Poverty stricken, adjective, muflis. Ally, verb, ختم کرنا, دھیما کر. Hostile, adjective, دشمنی پر مبنی. Neutralize, غیر جانبدار بنانا, verb. اس کی ریڈنگ ہے چمن کلیش. If the Afghan Taliban want the world to grant them legitimacy, then they should be able to fulfill the duties of a responsible government. اگر افغان طالبان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو قانونی حیثیت دنیا دے تو ان کو چاہیے کہ وہ فرائض پورے کریں جو ایک ذمہ دار حکومت کے ہوتے ہیں. This includes, اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ Maintaining calm at the borders, بارڈر پہ سرحد پہ سکون ہو. Preventing their own fighters, اپنے فائٹرز جو ہیں ان کو روکنا، اور ادر ملیٹنٹس یا دوسرے جنگجوؤں کو فرام اٹیکنگ innocent people across the frontier، سرحد پار اپنے فائٹرز کو بھی روکنا اور جو جنگجو ہیں ان کو بھی کہ وہ سرحد پار معصوم لوگوں پہ حملہ نہ کریں. دا ٹریجک ایونٹ، دردناک ایونٹ جو واقعہ ہوا ہے ایٹ دا پاک افغان بارڈر ان چمن میں پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر اتوار والے دن انڈیکیٹس، نشاندہی کرتا ہے that either Kabul's rulers are incapable of securing their borders، یا تو کابل کے جو حکمران ہیں وہ نااہل ہیں اپنے بارڈر کو محفوظ کرنے کے حوالے سے، اور that some elements within the Taliban want to test Pakistan's limits، یا کچھ جو طالبان میں ایسے کچھ جو ایلیمنٹ ہے، کچھ عناصر ہے وہ پاکستان کی حد کو، پاکستان کی حدود کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کا دوسرے لفظوں میں ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں. At least 7 deaths were reported on the Pakistani side after Afghan forces resorted to unprovoked shelling at the border
town, says ISPR. Unprovoked बिला इश्तियाल resorted to रजू करना। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में 7 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं जो अफगान फोर्सेस ने बिला इश्तियाल शेलिंग की है उसके नतीजे में। विद पाकिस्तान सिक्योरिटी पर्सोनल रिटर्निंग फायर, उसके जवाब में पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के जो पर्सोनल थे उन्होंने भी फिर फायरिंग की। द स्किर्मिश रिजल्टेड, स्किर्मिश लड़ाई झड़प, यानी लड़ाई या झड़प के नतीजे में क्या हुआ, इन द ब्रीफ क्लोजर ऑफ द बॉर्डर क्रॉसिंग, यानी उसके जो झड़प है उसके नतीजे में बॉर्डर क्रॉसिंग जो है वो बंद हो गई। एंड अपीयर टू बी अ रिपीट ऑफ अ सिमिलर इंसिडेंट लास्ट मंथ, और पिछले महीने जाहिर दिखाई देता है पिछले महीने जो इंसिडेंट जो वाक़या हुआ था उसका ये एक रिपीट दिखाई देता है। That resulted in the closure of the चमन क्रॉसिंग फॉर मोर देन अ वीक, और उस जो वाक़या महीना पहले हुआ था उसके नतीजे में चमन की जो बॉर्डर की क्रॉसिंग थी वो एक हफ्ता से ज़्यादा तक बंद रही थी। देन टू, उस वक्त भी गन फायर फ्रॉम अफगानिस्तान हैज़ रिजल्टेड इन कैजुअल्टीज हेयर, अफगानिस्तान की तरफ से जो गन फायर हुए थे, जो फायरिंग हुई थी उसके नतीजे में हलाकतें यहाँ पे हलाकतें हुई थी। प्राइम मिनिस्टर हैज़ कंडेम्ड द इंसिडेंट, वज़ीर आज़म ने इस वाक़ये की मज़म्मत की है। कॉलिंग अपॉन दी अफगान रूलर्स टू इंश्योर सच एपिसोड्स आर नॉट रिपीटेड। कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी चीज़ को या किसी शख्स को हेल्प के तौर पर, एक सोर्स के तौर पर किसी की तरफ रजू करना, यानी उन्होंने अफगान रूलर्स को कहा है कि वो ये चीज़ इंश्योर करें कि इस तरह के वाक़यात, एपिसोड्स किस ज़िमनी वाक़यात, इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रिपीट ना हो, दोहराए ना जाएं। सर्टन रिपोर्ट से, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं दैट स्मगलर्स वर ट्राइंग टू क्रॉस द फेंस्ड बॉर्डर एरिया इनटू पाकिस्तान, के स्मगलर जो हैं वो जो बाड़ लगी हुई है बॉर्डर पे उससे पाकिस्तान में एंटर होना चाहते थे। रिपोर्टडली विद सपोर्ट फ्राम दी तालिबान फोर्सेस, तालिबान की जो फोर्सेस है उनकी सपोर्ट के साथ। दो सम अफगान ऑफिशियल्स लीक द फ्लेयर अप टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक पॉइंट्स इन व्हाट दे क्लेम इज अफगान टेरिटरी, लेकिन कुछ जो अफगान के ऑफिशियल्स हैं सरकारी तौर पे उन्होंने इस फ्लेयर अप होता है भड़क उठना किसी चीज़ का, यानी इस इश्तियाल अंगेजी को लिंक किया है जो चेक पॉइंट की तामीर हो रही है उससे कि वो कहते हैं कि वो अफगानिस्तान की टेरिटरी है, उसका इलाका है जिसमें तामीर की जा रही है। पाकिस्तान शुड क्लियरली कम्युनिकेट टू द तालिबान, पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर तालिबान को बता देना चाहिए, कम्युनिकेट कर देना चाहिए दैट इट इज़ रेडी टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम एग्रेशन, कि पाकिस्तान जहरियत को डिफेंड करने के लिए तैयार है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये बदकिस्मती है दैट के वाइल इट इज़ दी तालिबान्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एबिलिटी टू कीप द पीस ऑन देयर साइड, ये तालिबान की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सरजमीन पर अमन कायम रखें। दे हैव नॉट प्रीवियसली एज वेल एज नो, पहले भी वो ऐसा नहीं कर सके और अब भी नहीं। रेंड इन, क्या नहीं कर सके, रेंड इन वायलेंट यानी लगाम देना, काबू करना, वायलेंट लॉलेस एनिमल्स यानी जो कानून शिकन एलिमेंट्स हैं या पुरतशद्दुद लोग हैं, जिनमें कौन कौन शामिल हैं, इंक्लूडिंग मिलिटेंट्स, उनमें जंगजू भी शामिल हैं, उनको लगाम नहीं, पहले भी नहीं दे सके और अब भी नहीं दे सक रहे। अफेक्ट, ये हकीकत है दैट पाकिस्तान विच हैज सफर्ड एज अ सीक्वेंस, हकीकत, ये एक हकीकत है कि इसके नतीजे में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कैन नॉट लूज साइट ऑफ, वो पाकिस्तान की नज़र से ओझल नहीं हो सकता ये सब कुछ। इट इज़ इन दिस कंटेक्स्ट, इस तनाजुर में दैट पाकिस्तान मस्ट डिस्प्ले फर्मनेस, कि पाकिस्तान को मजबूती दिखानी चाहिए डिस्पाइट इट्स सपोर्ट फॉर द अफगान पीपल, अफगानिस्तान के लोगों के की सपोर्ट के साथ साथ पाकिस्तान को मजबूती भी इस तनाजुर में दिखानी चाहिए। इट इज़ द तालिबान रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेस्ट्रेन स्मगलर्स, ये तालिबान की जिम्मेदारी है कि वो स्मगलर्स को रोकें और टेररिस्ट को रोके और क्रिमिनल एलिमेंट्स जो हैं उनको भी रोके। ट्राई टू स्नीक इनटू पाकिस्तान, स्नीक इनटू चुपके से आना, यानी जो चुपके से पाकिस्तान में दाखिल होना चाहते हैं उनको रोके। आल्सो देयर शुड बी नो
रिवेंचिस्ट इल्यूजन्स। रिवेंचिस्ट होता है किस चीज़ का बदला लेना, यानी ख़ास तौर पे ऐसी अदावत रखना जो कि अपने कोई इलाके किसी दूसरे मुल्क ने छीन ली हो तो उनकी वापसी के हवाले से। इल्यूजन्स वहम, यानी ऐसी किसी भी वहम में इलाकों की वापसी के हवाले से किसी वहम में नहीं रहना चाहिए। द पाक अफगान बॉर्डर मार्क द फ्रंटियर। जो पाक और अफगान बॉर्डर है वो क्या है, सरहद है बिटवीन द टू सॉवरन स्टेट्स या सॉवरन कंट्रीज, दो खुद मुख्तार मुल्कों के दरमियान सरहद है। एंड फैंटेसीज, फैंटेसीज कहते हैं तसव्वुरात, ख्यालात अबाउट रीड्राइंग द ड्यूरेंट लैंड मस्ट बी अबैंडन। अबैंडन छोड़ देना चाहिए, तर्क कर देना चाहिए, यानी उन ख्यालात को कि ड्यूरेलैंड को दोबारा रीड्रा किया जाएगा, दोबारा ये खींची जाएगी, इस तरह के तसव्वुरात या ख्यालात को छोड़ देना चाहिए। Their regressive worldview, the Afghan Taliban have an image problem globally. इनके रजत पसंदाना जो है व्यू की वजह से पूरी दुनिया में इनके इमेज का एक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान हैज नेवरदीलेस, ताहम पाकिस्तान ने इवन ड्यूरिंग द रूल ऑफ प्रो वेस्ट अशरफ गनी, प्रो वेस्ट मगरब नवाज, पाकिस्तान ने मगरब नवाज अशरफ गनी के दौरे हुकूमत में भी रजीम हुकूमत कॉल्ड फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एंगेज विद द तालिबान टू इंश्योर दैट अफगानिस्तान डज नॉट इम्प्लोड। इम्प्लोड होता है फटना, यानी किसी चीज का एंड हो जाना। यानी अशरफ गनी जो कि मगर नवाज थे, उनके दौरे हुकूमत में भी पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से मुतालबा किया था कि वो तालिबान के साथ एंगेज हों, उनके साथ रब्ता करें ताकि अफगानिस्तान को बचाया जा सके। फॉर द सेक ऑफ इट्स पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल, इसके जो मुफलिस लोग हैं, गुर्बत के सताए हुए लोग हैं, उनकी खातिर। द तालिबान नीड टू रियलाइज, तालिबान को ये जानने की ज़रूरत है, किस चीज़ को जानने की ज़रूरत है, एंड टेक स्टेप्स टू अलाई पाकिस्तान कंसर्न्स, और उनको पाकिस्तान के जो भी शकूक व शुबहात हैं उनको कम करना या धीमा करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। प्राइमरीली, बुनियादी तौर पर, दे मस्ट सिक्योर देयर साइड ऑफ बॉर्डर टू गारंटी देयर इज नो हॉस्टाइल एक्टिविटी डायरेक्टेड एट पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्हें अपनी साइड से ये गारंटी देनी चाहिए कि बॉर्डर महफूज है और वहाँ से पाकिस्तान की तरफ कोई भी हॉस्टाइल एक्टिविटी नहीं होगी, कोई दुश्मनी पर मबनी एक्टिविटी नहीं होगी। वाइल इफ टाइज बिकम स्ट्रेंड, जबकि अगर जो उनके ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के, इनमें कमी भी आती है, दे मस्ट बी इमीडिएटली अड्रेस्ड थ्रू डायलॉग इंस्टेड ऑफ एनी रिजोर्ट टू वायलेंस, और उनको डायलॉग के जरिए बेहतर करना चाहिए बजाय इसके कि वायलेंस की तरफ या तशद्दुद की तरफ रजू किया जाए। सेकेंडली, नंबर 2 पे, those anti-Pakistan terrorists that have sought refuge in Afghanistan should be neutralized. Neutralized गैर जानबदार, यानी वो टेररिस्ट, वो जंगजू जिन्होंने अफगानिस्तान में पनाह ली हुई है, उन्हें गैर जानबदार किया जाए। सो दैट दे आर नो लॉन्गर एबल टू हार्म दिस कंट्री, ताकि वो मजीद इस मुल्क को यानी पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचा सकें। एनीथिंग लेस, इससे अगर कोई चीज़ कम की जाती है, मे काज पाकिस्तान टू री असेस इट्स टाइज विद दी तालिबान, तो फिर पाकिस्तान को दोबारा जायज़ा लेना चाहिए, रीअसेस करना चाहिए अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।